नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हमारे ह्यूमन बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं सभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अगर हमें कहा जाए कि सबसे ऊपर आप किसको रेट करोगे जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो शायद मैक्सिमम लोग आँखों को ही करेंगे। बिकॉज चाहे हमारे सारे अंग बिल्कुल ठीक हों शरीर के, लेकिन अगर हम देख ना सकें या हमारी आँखें ठीक से काम ना करती हों तो ज़िंदगी में एक अंधेरा छा जाता है, जो हम नॉर्मली बहुत लोगों को अपने आसपास में देखते हैं जिनको देखने की प्रॉब्लम होती है, जो देख नहीं पाते ठीक से, या कई लोग पूरे तरीके से अंधे हो चुके होते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे डॉक्टर अमितोज सिंह जी के साथ में, जो है एक आई स्पेशलिस्ट और एक राइटर भी। तो हम सर से आईज़ के बारे में तो जानेंगे ही, इसके अलावा हम सर से जानेंगे कैसे इस प्रोफेशन को मेंटेन करते हुए एक बुक भी लिखी, और इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सर सबसे पहले आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें हमें, सो डैट कि हम आगे अपनी बात चालू कर सकें। ਹੈਲੋ एवरीवन, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤੋਜ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਈ ਸਰਜਨ ਹੈ ਐਂਡ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੋਇਟਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ, तो मैं ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ठीक है। So I am based in Jalandhar. I'm basically from होशियारपुर and I'm practicing in Jalandhar right now. ठीक है। Yeah. तो पाजी हम बिल्कुल जनरल बात से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम नॉर्मली सुनते हैं कि डिम लाइट में पढ़ाई करने से आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, या फिर गाजर खाया करो, गाजर से आंखें तेज होती हैं। तो एक कुछ बेसिक चीज़ें जो बचपन से लगभग हम हर जगह सुनते आए हैं, तो इसके बारे में एक बार आप हमें बताएं कि ये क्या सही है नहीं है, और डिटेल में इसके बारे में जानकारी दें। देखो डिम लाइट ਦੇ ਵਿੱਚ when we study in dim light ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਪਿਊਪਿਲ ਇਨ ਆਰ ਆਈ। ਇਟ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਆਈ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਕੈਮਰਾ, ਲਾਈਕ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੈਮਰਾ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਵੈਨ ਦ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਡਿਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਊਪਿਲ ਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਫਟਰ ਅ ਵਾਈਲ ਦੇ ਗੈਟ ਫਟੀਗਡ। Okay. So it will give you strain. So it's basically आंखें जल्दी थकती है। and so optimum light ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਪੀਪਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। there are muscles ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, there are muscles ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਡਾਇਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਮਸਲਸ ਆਰ at rest. Okay. So when you are studying in a good light, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਗਾਜਰ ਖਾਣਾ, ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ these are all ਬੀਟਾ ਕੈਰੋਟਿਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਆਈਜ਼। ਓਕੇ। ਆਈ ਸਾਈਡ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਟੇਕਿੰਗ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਫॉर ਦ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਗੁੱਡ ਆਈਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਓ ਡੇਜ਼। ਸੋ ਕੁਛ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸੋ ਕੈਰਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ, ਐਂਡ ਅੱਛੇ ਫਰੂਟਸ ਹੈ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲ ਫॉर ਦ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ। चश्मे का नंबर नहीं उतरता गाजर खाना, दैट इज़ फॉर श्योर। राइट। पाजी जब हम स्कूल में थे तो हम एक चीज़ सुनते थे, जिन बच्चों को चश्मे लगे होते थे, कि 20/20 या ऐसा 6/6। तो क्या चीज़ होती है? मुझे ये सिर्फ ये टर्म्स पता है, बट इसके बारे में ये नहीं पता कि क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं। 6/6 बेसिकली इज के किसी डिवीजन इज 6/60। दैट मीन्स कि जो मैं 60 फीट ਤੇ देख सकता है, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਫੀਟ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 6/60 means ਕਿ normal the person can see that thing from 60 feet, right, but the patient can see that from 6 feet. So ਉਹਦੀ vision ਜਿਹੜੀ ਉਹ compromised ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ। So 20/20 is basically we don't use it in Indian setups. Okay. ਉਹ US ਦੇ ਵਿੱਚ use ਹੁੰਦਾ ਹੈ 20/20. There's also the 20/20 and 60 is all same. Okay. ਉਹ ਜਿਹੜੀ grading है that is different for India. Okay. And it's different for US. तो बेस्ट कौन सी मानी जाएगी? Best is 6/6. 6/6. Yeah. Okay. And secondly, for young people, yes, but when we deal with old people, so ਸਾਨੂੰ basically vision is all about what you need. Right. ਇੱਕ old ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਟਿਕ ਨਾਲ ਵਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 6/6 ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Right. But yes, 6/6 is the best vision, and everybody wants, and we as an ophthalmologist, we go for it. This is the best we can do. This is the parameter for our success. What we do, and the 6/6 patient the vision आ जाती, it means we have done the best. Okay. Okay. अपने यहाँ पे इंडिया में एक हम लोगों में एक टेंडेंसी रहती है कि जब तक हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। रेगुलर चेकअप्स वगैरह इज़ नॉट अ कॉमन थिंग इन आवर कंट्री, राइट। तो अब आँखों के लिए एज अ आई स्पेशलिस्ट आप क्या रिकमेंड करते हो कि कितने टाइम पर आँखों का एक रेगुलर चेकअप होते रहना चाहिए, और ये
अलग अलग सिनेरियो में, लाइक किसी की एज ज़्यादा है या किसी को बीपी या डायबिटीज़ है, तो उसके लिए कैसे अलग रहेगा? देखो, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, when the baby is premature, like, so this is very important. Premature baby ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦਾ ਰੈਟੀਨਾ ਆ, that is not developed. So Okay. he or she needs regular follow-ups for that. तो पहला चेकअप तब at birth हो गया. ओके, आफ्टर दैट व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਰ वन आई इज सीइंग 6/6, द अदर आई इज कॉम्प्रोमाइज्ड, दैट कैन बी 6/24, 50% ਵਿਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਫੋਕਸਿਸ ਔਨ ਦ ਬੈਸਟ ਵਿਜ਼ਨ ਆਏ, ओके, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਅੱਖ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਕਾਲ ਲੇਜ਼ੀ ਆਈ, ओके, ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਐਂਬਲਿਓਪੀਆ। ठीक है, ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ठीक ਦੈਨ है, ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਗਲਾਸਿਸ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ 6/6 ਹੋ ਜੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੈਨ ਦੇ ਗੋ ਟੂ ਸਮ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ, ਦੇ ਵਾਂਟ 6/6 ਵਿਜ਼ਨ, Right. ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਇਟ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛੇ ਸਕੋਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਜੌਬ, राइट, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਟੀਨਏਜ ਹੈ, ਪਿਊਬਰਟੀ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਰੋਥ ਸਪਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਗੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਆਈ ਦੀ ਵੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨ ਸਾਇੰਸ 18 years ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦਾ ਯੂਜੂਅਲੀ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ देयर इन ਸਾਇੰਸ, राइट, ਸੋ till 18 we need every year or 6 monthly we need a checkup, क्योंकि glasses जो change हो रही हैं तो उन्हें change करवाना है। Like when I go to screenings in schools, I meet a lot of children who are not using glasses and their vision is less than 50% also. ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈਡੇਕ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈਂਪਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। Right. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ when you are young in your 20s, nowadays the people in 20s they need the eye doctors the most. Reason being all this screen time has increased. राइट, There is people are using screens for more than 10 hours a day. ਕਈਆਂ ਦਾ profession ਹੈ, ਕਈ ਅੱਜਕੱਲ you know the logarithms they engage you. Yeah, You yeah. don't know how much time you have spent. बिल्कुल, Right? बिल्कुल, So ਉਸ ਕਰਕੇ dryness ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। So that is 20s and 30s you need regular maintenance, and when you cross 40, so basically the oxidants start increasing in the body. ओके, So you need the checkups, and usually the near glasses are that are required after 40 years. This is aging of the normal lens. So everybody who crosses 40 will need glasses, maybe at 40, maybe at 45, राइट, right? So he needs regular checkup for that. When you cross 50, so then basically cataract starts coming in. Cataract basically is whitening of the normal crystalline lens. Okay. Lens ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫੇਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਫੇਦ ਮੋਤੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, राइट, which is again aging. ओके, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਂਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਖ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਆ ਆ, ਕਲਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਦੇ ਨੀਡ ਅ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ, ਗਲੂਕੋਮਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨੀਡ ਅ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ, right? So all these things, so everybody should get their eyes checked at least once a year, and especially the children ਜਦੋਂ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ 40s 50s ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਸਪੈਂਟ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਐਟ ਅ ਵਿਜ਼ਨ ਆਫ 660. They have not appreciated that what eyes can do, what eyes can see. They have not appreciated it. So this all comes to the health facilities and the awareness in the people, because ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, so health is not the priority till now. हाँ, बहुत बढ़िया बात बोली आपने सर। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे सही तो दिख रहा है, तो दे जस्ट डोंट वांट, और मे बी वो जाते ही नहीं, कि उनको लगता है कि भाई डॉक्टर के पास जाएंगे तो फालतू में कुछ ना कुछ निकाल देते हैं। कई लोगों को ना ये डर रहता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ निकल आता है, तो इसकी वजह से लोग अवॉइड करते हैं। जबकि आपका कहना है एज अ डॉक्टर कि मिनिमम 1 ईयर में एक बार और प्रेफरली 6 महीने में एक बार टेस्ट करवाना चाहिए, सो डैट की कोई भी कमी हो तो साथ के साथ में पता लग जाए और वो क्योर किया जा सके। अब हम अपनी गाड़ी की सर्विस क्यों करवाते हैं? उसमें फॉल्ट तो नहीं होता ना? नहीं। हाँ. तो ये जो आप बात कर रहे थे, ये तो वो बात होगी कि लाइक समटाइम्स इफ वी ऑर्डर MRI फॉर अ पेशेंट, हाँ, तो पेशेंट 6000 खर्च के वापस आके ये गल कहता है कि यार निकले तो कुछ भी नहीं है, हाँ, दैट डजंट मीन कि वो जरूरी नहीं सी, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल, सो ये तो है ही है। बिल्कुल। पाजी, हम आजकल डिजिटल डिलेमा में रहते हैं। आप जानते हो, जैसे आपने खुद भी बताया कि लोगों का स्क्रीन टाइम 10-10 घंटे। अब हम लोग, हमारा काम ही लैपटॉप पे है,
तो 8-10 घंटे तो काम होता है, उसके अलावा फ़ोन में हर कोई व्हाट्सएप, रील्स, इंस्टाग्राम सब यूज़ करते हैं। तो अब इसको कोई छोड़ दे, ये तो आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन कर क्या सकते हैं कि जिसमें आंखों के ऊपर मिनिमम इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े और मिनिमम स्ट्रेन पड़े और आइज़ बेस्ट कंडीशन में रह सके। See, there are two epidemics coming in ophthalmology. Okay. One is myopia, that is short-sightedness, कि दूर की नज़र कम हो रही है बच्चों से. ठीक है। And second is dryness. Okay. There's a technical term now, there's a diagnosis in ophthalmology which is called computer vision syndrome. Okay. It's all related to the screen times. So पहले मैं ड्राइनेस की बात कर लेता हूँ, नहीं सॉरी मायोपिया की बात करते हैं. तो मायोपिया बेसिकली जो आजकल बच्चों को बोला जाता है कि फ़ोन यूज़ नहीं करना है, तो मैं मोटा सा बता देता हूँ. देयर इज़ अ स्टडी, एटम स्टडी है जो वर्ल्ड में हुई है. तो बेसिकली अगर हम देसी भाषा में समझने की कोशिश करें तो उसमें बेसिकली ये है कि जैसे बच्चा पास का देखने शुरू कर देता है तो अब ये मान के चलिए कि ब्रेन को लगता है कि शायद इसको इतनी विजन की ही ज़रूरत है, तो ब्रेन इतनी पे फोकस करता है एंड उसकी दूर की नज़र वो कम होने लग जाती है, तो उसको जो है चश्मा लग जाता है. ओके, ठीक है जी. और ये जो चीज़ है, ये आप मेरे पास पेशेंट्स जब आते हैं 3 साल 4 साल से, तो दे हैव बिग माइनस नंबर्स. उसका कारण है नियर वर्क बहुत बढ़ गया है. पहले हम जैसे हमारे फादर्स के टाइम पे तो 6 साल से पहले तो बच्चा स्कूल भी नहीं जाता था. सही बात है. राइट. तो अभी तो 2.5 साल से स्कूलिंग शुरू है. और जो पेरेंट्स की जो ये जो चीज़ है कि बच्चा रो रहा है उसको फ़ोन दे दो, बच्चा खाना नहीं खा रहा उसको फ़ोन दे दो, तो उनके लिए एक एस्केप हो गया फ़ोन. पेरेंट्स को होता है कि इसको फ़ोन दे दो, हम कुछ काम भी कर सकते हैं. बिल्कुल. राइट. सो ये जो चीज़ है, दिस इज़ वेरी डेवास्टेटिंग फॉर आवर जनरेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो दिस इज़ वन एपिडेमिक एंड इसके लिए बहुत रिसर्च हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है. देयर आर सम ड्रॉप्स कमिंग इन, बट अगेन द आंसर टू ऑल दिस थिंग्स आर लाइफस्टाइल चेंजेस. राइट. दूसरी बात है ड्राइनेस और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम. तो ड्राइनेस इसलिए होती है जब हम फ़ोन पे चीज़ देख रहे हैं तो वी डोंट ब्लिंक, वी फॉरगेट टू ब्लिंक. राइट. सो जब तक आप ब्लिंक नहीं करोगे तो द टीयर फिल्म इज़ नॉट रेप्लिश्ड, वो फिर से बनती नहीं है. टीयर फिल्म अगर ड्राई आई कैनॉट सी द बेस्ट. ओके. ड्राई आई अच्छी तरह देख नहीं सकती. ठीक है. सो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਟੀਅਰ ਫਿਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਵਿਦ ਐਵਰੀ ਬਲਿੰਕ ਨਿਊ टीयर फिल्म कम्स इन. ओके. एंड टीयर फिल्म हैज़ इट्स ओन 3 लेयर्स. उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बट वो अपने आप में एक ल्यूब्रिकेंट है. राइट. इट्स लाइक जैसे एक शीशे की वॉल है, उसके ऊपर पानी चल रहा है तो आप देख सकते हैं. जब पानी रुक जाता है तो आप नहीं देख सकते. हाँ, क्योंकि उसके ऊपर एक स्टेन्स पड़ जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. सेम इज विद आई. राइट. सो ड्राइनेस बहुत कॉमन है. और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम एक डायग्नोसिस ऐसा है कि सिंड्रोम आ गया क्योंकि मान लीजिए आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, पहले तो आपकी आइज ड्राई हो गई, तो आपकी आइज ग्रिटी हो गई, पेन हो गया, चुभेगी. ठीक है. और दूसरी बात क्या होगा, आपका ये चीज़ पेन करेगी, स्ट्रेन पड़ेगा यहाँ पे. बिल्कुल. उसके बाद आपकी ये जो गर्दन है वो दुखेगी क्योंकि आपका पोस्चर जो है आपने चेंज नहीं किया 3 घंटे से. फिर आपकी बैक, लोअर बैक दुखेगी. राइट. सो ये एक पूरा सिंड्रोम बन गया, एक साइकिल चल रहा है पूरा साइकिल है. और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो बच्चों के कारण अभी हमारे टाइम तक तो ये था कि आउटडोर एक्टिविटीज बहुत होती थी. घर वाले पीट के अंदर लेके आते थे बच्चे को. सही बात है. अभी क्या हो गया कि बच्चे बाहर नहीं जाते हैं. बिल्कुल ऑपोजिट हो गया. तो लोग जैसे बोलते हैं कि वी सेव आवर स्किन फ्रॉम यूवी रेडिएशंस एंड ऑल, बट आईज नीड यूवी रेडिएशंस फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉर्नियाज. तो आजकल क्या हो रहा है कि इंडोर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है, हमारे कॉर्नियाज जो है वीक हो गए हैं. तो उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है क्रेटोकोनस. तो उसमें क्या हो रहा है कि कॉर्निया इतना वीक है कि हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में जाके उसको यूवी रेडिएशंस दे रहे हैं टू स्ट्रेंथन द कॉर्निया. सो ये हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना बुरा हो चुका है कि वी आर इनवाइटिंग प्रॉब्लम्स टू अस. ओके. तो जैसे डॉक्टर साहब हम धूप में जाते हैं तो नॉर्मली एक परसेप्शन है कि हमें यूवी रे से प्रोटेक्शन चाहिए होता है, तो उसके लिए कुछ चश्मे लगाते हैं लोग या अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं. तो आप जैसे बोल रहे हो कि उल्टा ही हो रहा है कि यूवी की ही कमी हो रही है. तो अब यूवी से प्रोटेक्शन हमें जरूरत नहीं है क्या? नहीं, जरूरत तो है, बट अगर आप ग्लासेस भी लगा रहे हो पर कुछ कंटेंट तो आपके आंखों में जा रहा है ना. बिल्कुल. कहीं ना कहीं मतलब जैसे अब तो फिर स्किन को तो यूवी रेडिएशन से आप बोलोगे कैंसर हो जाता है, बट स्किन को विटामिन डी भी तो मिलता है. हाँ. मतलब एक लिमिट में. यस. तो विटामिन ए बटर में बहुत ज्यादा है. हाँ. तो अगर आप 1 कटोरी बटर खा लोगे तो आपको विटामिन ए तो आपका बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया साथ में. कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया. तो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस इन द लाइफ. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेयरिंग सनग्लासेस? और कई लोग मतलब बहुत ही सस्ते भी सनग्लासेस बिकते हैं, रोड किनारे भी लोग बेचते हैं, तो क्या उनका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है आइज के ऊपर? नेगेटिव तो नहीं पड़ता है, बट हाँ ग्लासेस के साथ इट सूदन्स योर आइज.
वो Okay. आपको जो स्ट्रेन है, जैसे वही बात होगी ना, अगर ज्यादा लाइट में जाओगे तो आंख का शटर है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक देन है। अगेन मसल्स कम इनटू प्ले, तो वो थकावट होती है। ओके, ठीक है ना। Okay, तो got वो it. जब आप ब्लैक चश्मा लगा लेते हो तो आपकी लाइट कम जाती है अंदर, तो वो जो प्यूपिल है वो एक जो स्टैंडर्ड कर साइज है उस सकते पे रहता है, तो वो Okay. स्ट्रेन नहीं बढ़ता। Okay. एंड कई लोगों को जेन्युइनली जो है बहुत हाई लाइट से या हाई सनलाइट जो बहुत ज़्यादा तेज होती है उससे उनको प्रॉब्लम होती भी है। नेचुरल दे आर काइंड ऑफ एलर्जिक टू दैट ऑल्सो, दे आर नॉट कंफर्टेबल ऑल्सो, right? So it depends from person to person, but yes, we need outdoor activities, Okay. at least in children, क्योंकि जब ग्रोथ हो रही है आँख की तो आँख को पूरा न्यूट्रिशन, हर तरह का जो थेरेपी वो चाहिए, नहीं तो फिर वो हॉस्पिटल में आके लेनी पड़ेगी आपको। गॉट इट। अब डॉक्टर साहब हम आई स्पेसिफिक कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। हमने बहुत लोगों को देखा है कि वो अक्सर आंखें अपनी रगड़ते रहते हैं, जी, हर 2 मिनट बाद उनके जो हाथ है वो आंख पे चला जाता है और आंखें रगड़ते रहते हैं। ये क्यों होता है, लोग ऐसा क्यों करते हैं और इसके पीछे का क्या फैक्टर क्या है और कैसे इसको क्योर किया जा सकता है या फिर इसको कंट्रोल या ख़त्म किया जा सकता है? ड्राइनेस सबसे पहला। ओके। जो मजदूर बाहर धूप में काम कर रहा है वो अपनी आंखें में नहीं मलता है, जो बाहर अंदर बैठा है वो मलता है, क्योंकि उसने आउटडोर एक्टिविटी इतनी बंद कर दी है, उसका एक्सपोजर इतना कम हो गया है कि वो थोड़ा सा भी उसकी आंख में कोई प्रॉब्लम होती उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। हमने अपने बॉडी को सेंसिटिव इतना कर लिया ना, जैसे हम इसी के बिना अब रह नहीं सकते। बिल्कुल। ठीक है ना। तो बेसिकली एक तो ड्राइनेस है, दूसरा सम पीपल जेन्युइनली हैव एलर्जीज। ठीक है। कईयों को जैसे अब बुक्स पढ़ी हैं, बुक्स बहुत देर बाद बुक खोली उसने तो डस्ट आई आंख में, उससे हो सकता है। ठीक है। कईयों को मेकअप से होता है। तो बेसिकली अगर आपकी खारिश हो रही है तो उसका कारण एलर्जी हो सकता है, ड्राइनेस हो सकता है। ठीक है। ठीक है। स्मोक हो सकता है, जैसे कईयों का काम ऐसा होता है। बट हाँ, जो एक्सेसिव रबिंग है वो नहीं करनी चाहिए, खासकर बच्चों में। एक्सेसिव रबिंग बेसिकली चेंजेस द शेप ऑफ द कॉर्निया। ठीक है। तो कॉर्निया का शेप चेंज होता है तो नंबर जो है वो आना शुरू हो जाता है। ओके। राइट। ओके। जो सिलेंड्रिकल नंबर स्पेसिफिकली, ठीक है। जो रबिंग के साथ जो है तो वो सिलेंड्रिकल नंबर आना शुरू हो जाता है। एंड सेकेंडली इट्स नॉट गुड फॉर द आईज। तो जैसे आपने बताया कि आंखें रगड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जी। अब अगर मैं जानना चाहता हूँ, लेट्स से कि मेरी बेटी है वो बहुत आंखें रगड़ रही है, तो कौन सा रीज़न है जो उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? तो क्या इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह होता है जो आप देखते हो टेस्ट करके कि क्या एग्जैक्ट रीज़न है और उसको कैसे क्योर किया जाए? बिकॉज इतने सारे फैक्टर्स में मुझे नहीं पता मैं उस पर कौन सा जो है मतलब अप्लाई करूँ चीज़ की जो जिससे वो अपनी आंखें रगड़ना कम करे या बंद That's करे। why she needs to visit ophthalmologist once a year. ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। अब जो हम ड्राई आइज वाली जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ पलक कम झपकने की वजह से होता है या इसके अलावा और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं डॉक्टर साहब? हो सकते हैं। क्या? जैसे आजकल हम एसी चलाते हैं, हीटर चलाते हैं। ठीक है। व्हाट हैपेंस कि जो एसी और हीटर है ना, ये ह्यूमिडिटी खत्म कर देते हैं हवा की। ठीक है, पानी खींच लेता सारा। यस। बिल्कुल। तो ह्यूमिडिटी नहीं है तो ड्राई एयर जो है वो आंखों को ज़्यादा तंग करती है, तो इसलिए ह्यूमिडिफायर्स कम्स इनटू प्ले। जो ह्यूमिडिफायर नहीं अफोर्ड कर सकते उनको हम ये बोलते हैं कि एक बाउल लो, उसमें पानी रखो कमरे के अंदर। ओके। ये बहुत बड़ा रीज़न है। खास करके जैसे जो हमारे पास एनआरआई पेशेंट्स आते हैं जो कनाडा में रह रहे हैं जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है, ऑलवेज हीटर्स आर ऑन, तो ह्यूमिडिटी कम हो रही है, खत्म हो रही है। बेसिकली उनके इन्वायरमेंट में पानी नमी जो है वो है ही नहीं, तो इसकी वजह से। हाँ, उनके कमरे में नमी नहीं है। बाहर तो नेचर सब कुछ देता है आपको। ओके। हम जो झोंपड़े बना के उसको पक्के करके और उसके अंदर जो अपना सेटअप करते हैं ना, वो हम नेचर की तरह कर नहीं सकते। राइट। ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो ये बहुत बड़ा कारण है ये ड्राइनेस का। फिर कई कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जैसे अर्थराइटिस है। ठीक है ना। उन प्रॉब्लम्स में मतलब कि आपका मुंह सूखना और आंखें सूखना वो नेचुरल उस डिजीज का पार्ट होता है। ओके। राइट। देयर आर सम डिजीजेज आल्सो जिसमें ये चीज़ होती है। ठीक है। अब डॉक्टर साहब एक हुआ आंख रगड़ने वाली बात, दूसरे हमने कई बार देखा है लोगों के आंखों से पानी आता है। जी। बहुत आम सी बात है, बहुत सारे लोगों को ऐसी सिचुएशन हमने देखी है कि कुछ कुछ देर बाद वो अपना आंख में या तो रुमाल से या हाथों से भी पोंछते रहते हैं। तो आंखों में पानी आने का क्या कारण है? आंखों में पानी आने का कारण सब ड्राइनेस भी है, रिफ्लेक्स उसको बोलते हैं, रिफ्लेक्स टेयरिंग। ओके। ठीक है ना। क्योंकि अगर सूखी आंख है तो आंख में जो ग्लैंड है वो एकदम से पानी निकाल देता है। सूखी आंख में एकदम से पानी आ जाना, ठीक है। फिर आंख में कुछ पड़ गया, एलर्जी में पानी आता है। जब भी आंख डिस्टर्ब होती है वो पानी छोड़ेगी। ओके। ठीक है। जब भी दिमाग खराब होता है आंख से पानी आएगा, जब दिल खराब होता है तब भी आंख से पानी आएगा। तो आंख खराब होगी तो उसमें तो पानी आना ही है ना। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रिवेंशन के टाइप से है कि बॉडी को कुछ बता एलर्जी रही होती है, जेनुइनली भी होती है। कहीं को धूप से होती है, कहीं को डस्ट से होती है। ठीक है। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। पानी आना जो है इट मींस योर आईज आर नॉट हेल्दी।
ओके राइट, तो यू नीड सम मेडिकेशन। और कईयों को जो है सीजनल एलर्जी होती है, जैसे हार्वेस्टिंग सीजन आ गया, ठीक है, पोलन्स आर इन द एयर, तो जिनके को अस्थमा होता है तो उनमें उनको एलर्जी होती है। यूजुअली जो एलर्जी ज़्यादा हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो होते हैं सीजन का ट्रांजिशन होता है, जब गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी का ट्रांजिशन मंथ होते हैं ना, जैसे दिस इज अ ट्रांजिशन मंथ नाउ, Right. दिस मार्च एंड अप्रैल, ओके, तो इसमें हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं। ठीक है, Right. ठीक है। ग्लूकोमा जैसे आपने अभी जिक्र किया उसका, तो उसको बोला जाता है कि एक साइलेंट थ्रेट की तरह ये होता है। जी, तो ये नॉर्मली किस एज ग्रुप में ये ज़्यादा पाया जाता है, और जिसको मतलब इसके अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जिससे पर्सन आइडेंटिफाई कर सके कि किसी को ग्लूकोमा या फिर काला मोतिया भी शायद इसको कहते हैं, कैसे पता चलेगा? ग्लूकोमा किसी भी एज में हो सकता है। ग्लूकोमा जन्म पे बच्चे को हो सकता है, ओके, ठीक है, टीन एज में भी ग्लूकोमा हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ग्लूकोमा का आपको मैकेनिज्म में हल्का सा जो मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ बिल्कुल। पेशेंट्स को, वो ये है कि बेसिकली आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। 99% ग्लूकोमा जो आइज ग्लूकोमेटस आइज में प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो मोटी सी बात ये समझो कि जो आँख की जो नस है, जो ऑप्टिक नर्व विच कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन, उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो जो है वो रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने गार्डन में पानी की पाइप लगाई, आपने उसके ऊपर पैर रख दिया, तो पानी का फ्लो खत्म हो गया, बिल्कुल, तो प्रेशर बढ़ता है तो वो पिचक जाती है, ठीक है, ठीक है ना। तो वो ब्लड सप्लाई रुक गई ऑप्टिक नर्व की, तो ऑप्टिक नर्व की सेल डेथ शुरू हो जाती है, तो ऑप्टिक नर्व डैमेज शुरू हो जाता है। एंड ब्रेन एंड ऑप्टिक नर्व, ऑल दिस नर्व्स इन आवर ब्रेन, इनका जो डैमेज है वो रिपेयरेबल नहीं होता, कोई भी नर्व रीजनरेट नहीं करती है, ओके, ठीक है ना। ओके। So, जैसे डैमेज होती कैसे है ये? उस ब्लड सप्लाई रुक गई ना, उसका न्यूट्रिशन रुक गया, और ब्लड सप्लाई रुकने के कुछ कारण क्या हो प्रेशर सकते बढ़ना, ग्लूकोमा में प्रेशर बढ़ गया। आँख के अंदर एक फ्लूइड होता है जैसे, हैं? ओके, उसका वो जो प्रेशर बढ़ा, ठीक तो है, उसने जो आर्टरीज थी, वेन्स थी, उसको बंद कर दिया ना, प्रेशर के साथ उसको बिल्कुल बंद कर दिया, ठीक तो है, दो ब्लड सप्लाई रुक गई, न्यूट्रिशन खत्म हो गया, तो वो जो नर्व है वो मरना शुरू हो जाती है, उसके सेल डेथ शुरू हो जाती है। ओके, ओके। Right. तो इसको So- प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा सकता है? ग्लूकोमा समटाइम्स इन सम केसेस इट्स हेरिडेटरी आल्सो। जैसे हमारे पास पेशेंट आता है तो उसको बोलते हैं कि तेरे फादर को था, जब तेरे बच्चों को भी चेक करवाओ आके, ठीक है, ठीक है। एक तो ये हेरिडिटरी हो गया, ठीक है। राइट। दूसरा ये है कि कई बार सेकेंडरी ग्लूकोमा बोलते हैं, जो किसी बीमारी है कुछ ऐसी आंखों की, उसके कारण भी ग्लूकोमा हो जाता है। चोट लगने के बाद आंख में ग्लूकोमा हो सकता है। ओके, सफ़ेद मोतिया बहुत ज़्यादा पका लिया आपने, ऑपरेट नहीं करवा रहे हैं, लेंस जो है वाइट हो के फूल गया, उसकी जगह जितनी बनती है उससे ज़्यादा जगह लेने शुरू कर दी उसने, प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, उससे भी काला मोतिया हो सकता है, ओके, ठीक है। सो काला मोतिया, अच्छा एक और चीज़ जो थ्योरी है कि जो जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो आंखों का प्रेशर बढ़ता है, वो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। ओके, तो इसलिए ये बोला जाता था पहले, अभी भी कुछ लोग बोल देते हैं कि पानी ज़्यादा पियो, ठीक कि है, ब्लड प्रेशर लो ना हो। तो जैसे ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम ये पूछते हैं, आप मेडिसिन कब लेते हो ब्लड प्रेशर की, ओके, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेगा उसका प्रेशर लो हो जाएगा ब्लड ठीक का, है। तो आँख का बढ़ेगा, तो हम जो ग्लूकोमा मेडिकेशन देनी है हमने उस हिसाब से देते हैं, ठीक है। इसकी प्रिवेंशन के लिए वही फिर बात आ गई कि आप अपना चेकअप करवाते रहो। ठीक है, अगर 50 साल के बंदे को ग्लूकोमा है तो मैं उसको बोल दूंगा कि अपने बच्चे को चेक करवाओ, वो आया तो उसके साथ बच्चे आ गए, मैंने उसके बच्चे बुला लिए, उसके बच्चे चेक कर लिए। ठीक है, मैंने कई ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनके बच्चों को मैंने मतलब आइडेंटिफाई किया, उनको ग्लूकोमा था नहीं, उनको रेगुलर फॉलोअप पे डाल दिया कि जब भी उनका ऐसा कुछ सीन बनेगा तो मैं उनको मेडिसिन देके उसको प्रिवेंट कर। ग्लूकोमा इज इरिवर्सिबल। ओके, जो सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन होती है आम लोगों को, सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया। सफ़ेद मोतिया बीमारी नहीं है, सफ़ेद मोतिया इज जस्ट एजिंग। सफेद मोतिया यानी कि कैटरेक्ट? कैटरेक्ट या सफ़ेद मोतिया बीमारी नहीं है, ओके, वो एक एजिंग है, आपके बाल सफ़ेद होते हैं, ठीक है ना, ऐसे आंखों का जो लेंस है वो सफ़ेद हो जाता है, ठीक है, उसका ऑपरेशन करेंगे। मैं अभी किसी पेशेंट का ऑपरेशन करूंगा तो उसको ऑपरेशन सेंटर के बाहर लेके आधे घंटे में पढ़ा दूंगा सब कुछ, यानी कि वो क्योर हो गया? क्योर हो गया। ओके, जो ग्लूकोमा है वो डिजीज़ है, वो बीमारी है, और उससे जो नज़र जाएगी वो वापस नहीं आती। ठीक और है, पेशेंट हमारे पास बहुत बार ऐसे बोलते हैं, डॉक्टर साहब कुछ और हो सकता है, तो दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो ग्लूकोमा इज़ अ वेरी डेडली डिजीज़। और एक और बात, मैं बहुत टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना चाहता, बट ग्लूकोमा जो है वो आपकी विजन जो है एक तरीके से खाता है। जो विजन जाती है, द विजन लॉस इन ग्लूकोमा इज पेरिफेरल फर्स्ट, तो बाहर की नज़र जाती है।
तो सेंटर की नज़र बची रहती है। जैसे मैं आपको सीधा देख रहा हूँ ना, मैं आप लास्ट स्टेज तक मैं आपको देख सकता हूँ, सही है। मगर ये जो चीज़ है ये नहीं देख पाऊंगा, तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द फील्ड हो जाती है। ओके तो बिल्कुल टनल विजन बोलते हैं उसको। ओके तो जो एजुकेटेड पेशेंट नहीं है, जो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि मेरी साइड की विजन चली गई। जो ड्राइवर है उसको पता लगेगा कि यार मैं यहाँ से गाड़ी निकली, मेरे को दिखी नहीं। जो सेडेंटरी पेशेंट है, हाउस वाइफ्स हैं जो घर पे हैं, उनको पता ही नहीं लगेगा, तो वो लास्ट स्टेज पे आते हैं। तो लास्ट स्टेज पे कुछ हो नहीं सकता। ओके तो एंड सेकेंडली ग्लूकोमा इज यूजुअली मैनेज विद मेडिकेशंस। ओके लास्ट स्टेज पे जाके हम उसकी सर्जरी करते हैं। ठीक है जी ठीक है। डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं चश्मे की, जी। जो बहुत एक कॉमन चीज़ हम देखते हैं। जी सबसे पहले तो चश्मा लगता क्यों है? और हमने देखा है कभी ये बच्चों को लगता है, किसी को जवानी में लगता है, और किसी को बहुत ही ओल्ड एज में जाके 60-70s में लगता है। क्या रीज़न है इसके पीछे? बेसिक साइंस या थ्योरी क्या है? देखो, 2 नंबर होते हैं, माइनस प्लस। ठीक है। मोटी सी बात है, आँख का साइज जो है वो चश्मे का नंबर डिसाइड करता है। जैसे कि आँख लंबी है नॉर्मल से, तो उसको माइनस का नंबर लगना है। आँख छोटी है, उसको प्लस का नंबर लगना है। मायोपिया इज शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया मतलब कि दूर का नज़र नहीं आ रहा है, ठीक तो है। वो ज़्यादा कॉमन है आजकल। मैंने आपको उसका रीज़न भी बता दिया। बिल्कुल। ठीक है। तो जो प्लस का नंबर है वो भी आता है, बट वो इतना कॉमन नहीं है। ठीक है। और 40 के बाद जो चश्मा लगता है उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया, दैट इज लेंस की एजिंग। ओके जो लेंस है अपना साइज को लंबा और छोटा करके हमारे लिए जो पिक्चर है एग्जैक्ट पोजीशन पे बनाता है आंख के। ठीक है। तो 40 तक पहुंचते पहुंचते लेंस जो है वो बुढ़ा हो जाता है, तो उससे वो उतनी मूवमेंट नहीं हो पाती, ठीक तो है। नियर के चश्मा लग जाता है। और जिनको माइनस का नंबर होता है उनको प्लस का नंबर जो नज़दीक है बहुत लेट लगता है। 40 पे नहीं लगेगा, 45 पे लग जाएगा, 50 पे लगेगा। ठीक ठीक है। तो ये चीज़ होगी एक। तो जिसकी आंख लंबी है नॉर्मल से, तो उनका है। जैसे जब बच्चे हाइट गेन करते हैं तो उनको माइनस का नंबर आता है, क्योंकि जब हाइट गेन करते हैं तो आंख का साइज भी तो चेंज हो रहा है ना, बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो ये है, मतलब कि उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, जैसे सिलेंड्रिकल नंबर हो गया, कहीं को एक आंख में प्लस है, कहीं एक में माइनस का भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द आई साइज एंड द आई शेप, द शेप ऑफ द कॉर्निया। ओके ठीक है। तो कॉर्निया की शेप की कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उसमें भी सिलेंड्रिकल नंबर आ जाता है। ठीक है। जो बोलते हैं कि लेट नंबर आया, वो होता नहीं है, बेसिकली उन्होंने कभी चेक ही नहीं करवाया। वो बेसिकली नंबर पहले से ही था, वो समझ बाद में आई। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मेरे को 0.5 का नंबर है, ठीक है, बट मेरी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो 0.5 नंबर के बिना हो रही हैं। ठीक है। मैं कोई इतना दूर नहीं देखता, मेरे पास चश्मा है। जैसे मैंने कहीं कॉन्फ्रेंस पे जाना है, या कहीं कोई ऐसी मूवी देखने जाना है, मैं बहुत पीछे बैठना है, तो आई कैरी इट, क्योंकि मेरे को 6x6 का काम करने के लिए 6x6 नज़र चाहिए। ठीक है। अगर मेरी 1 पॉइंट कम भी है ना, तो नाक पे चश्मा रखना हर टाइम जरूरी भी नहीं है। ओके। आई टेल माई पेशेंट्स, ओके। इफ यू नीड ग्लासेस, यू नीड ग्लासेस। ठीक है। सिर्फ अपना चश्मा बेचने के लिए मैं उसको चश्मा नहीं, क्योंकि चश्मा लगाना अपने आप में एक स्ट्रगल है, मेरे को लगता है। क्योंकि कोविड के बाद लोगों को पता लगा, क्योंकि फॉगिंग होती है। ठीक है, मास्क लगाओ, फॉगिंग होती है, बाहर जाओ एसी गाड़ी में फॉगिंग होती है। हाँ जी। जरूरत है तो लगाना। जैसे बुजुर्ग पेशेंट मैंने आपको बताया था, 70 साल का बुजुर्ग है, उसको 6 बन रही चश्मे के साथ, मगर मैंने क्यों देना उसको चश्मा? उसने 6 का काम ही कोई नहीं करना। जब जरूरत है उसकी तभी यूज करना है। जी, मगर बच्चों में ये रूल फॉलो नहीं होता। टिल 18 ईयर्स जो नंबर है उसको लगाना ही लगाना है, क्योंकि वो नंबर नहीं लगाओगे तो जो आपकी जो आंख है कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगी। ये जरूरी है। ओके ओके। अब डॉक्टर साहब, एक चश्मों के लेके एक सवाल आता है कि जिसको एक बार चश्मा लग गया, क्या उसको हट सकता है, या फिर अब वो प्लस माइनस होता रहेगा लेकिन वो चलना अब लाइफ लॉन्ग है? जिनको चश्मा लगता है उनका 18 साल तक फ्लक्चुएट करता है नंबर। माइनस का नंबर जो है, जैसे नंबर बढ़ता है। ठीक है। 18 साल के बाद चश्मे का नंबर कभी खत्म नहीं होता, अपने आप कभी खत्म नहीं होता। देर आर सम पीपल, देर आर सम बाबाज हु क्लेम इट, विच इज ऑल स्पूफ। वो बिल्कुल झूठ है। ठीक है। ठीक है। चश्मे जो साइंस बोलती है वो जो है कि चश्मे का नंबर जो है, किसी का 4 नंबर है, वो मैजिकली ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो वेग लोग बातें करते हैं उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता। हम जो साइंस में बात करते हैं हमारे पास प्रूफ्स होते हैं, हमारे पास 100 साल की स्टडी भी होती है। चश्मे का नंबर उतर सकता है, उसके लिए ऑपरेशंस हैं, लेसिक है, राइट। ओके। तो वो रिफ्रैक्टिव सर्जरीज बोलते हैं उसको, तो वो हम करवा सके, वो करवाएंगे तो चश्मा उतर जाएगा। ठीक है। बट जैसे अगर आप 20 साल का बच्चा मेरे पास आता है, वो बोलता है चश्मा उतारना है, तो मैं उतार दूंगा जब तक उसको नज़दीक का चश्मा नहीं लगता। जब उसको नज़दीक का चश्मा लगेगा उसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि लेसिक लेजर ने जो रिफ्रैक्टिव सर्जरीज है, जो स्माइल है, चाहे कुछ भी है, तो उसने दूर का चश्मा खत्म कर देना है। नज़दीक का जब आएगा तब लगाना पड़ेगा उसको। चश्मा उतर सकता है विद ऑपरेशन, वैसे चश्मा नहीं उतर सकता। जो बोलते हैं वो सब झूठ है। चश्मे का नंबर आएगा तो वो लगाना ही पड़ेगा। क्लियर।
अब हम बात करते हैं कि कुछ मोस्ट कॉमन आईज कंडीशंस के बारे में जिसका खास ख्याल रखना चाहिए लोगों को, और जैसी उनमें से कोई चीज़ दिखती है तो इमीडिएटली दे शुड गो टू अ डॉक्टर। पहले तो ड्राई आइज हो गई, ठीक है। फिर वाटरिंग हो गई। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा आई रबिंग कर रहा है, उसको प्रॉब्लम, उसको डिजीज हो सकता है बाद में, उसका कॉर्निया वीक हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और उसके बाद जैसे जिसको ग्लूकोमा है उसको जाना चाहिए। ग्लूकोमा के सिम्टम मैं आपको बताना भूल गया था। ग्लूकोमा जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है ना, तो आपको लाइट के अराउंड रिंग्स दिखती हैं। वो काले काले रिंग्स नहीं, रंग बिरंगे रिंग्स। अच्छा, रंग बिरंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, उसको हम अटैक बोलते हैं, ग्लूकोमा अटैक। उसमें आँख का प्रेशर नॉर्मल 20 होता है, तो उसमें 50-60 तक चला जाता है। तो आई में पेन होती है, रेडनेस होती है, वॉमिटिंग आती है, हेडेक होता है। वो एक तरह से एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, जैसे हार्ट अटैक है वैसे। अच्छा, आंखों के लिए, आँख को बचाने के लिए वो करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, डायबिटीज है, डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है, वो आँख की नज़र सारी खा जाती है पीछे से अगर आप उसका इलाज नहीं करोगे। वो रेटिना को ऐसी इस तरह से हिट करती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को रेगुलर फॉलोअप पे रखना पड़ता है। ठीक है। बहुत लिमिटेड से हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अगर वो टाइम पे नहीं करेंगे तो उसकी नज़र नहीं बचा सकते हम। बहुत तकरीबन अगर मैं ओपीडी में देखूँ तो हफ्ते में 2 पेशेंट्स को मैं मतलब हाथ जोड़ देता हूँ कि हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कंडीशन ऐसी हो जाती है आँख की। ठीक है जी, ठीक है। तो ये हो गया। और जब आप 40 क्रॉस करते हो तो आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। वो जो आपका रेटिना है उसमें एजिंग होनी शुरू हो जाती है, उसमें ऑक्सीडेंट्स के कारण उसमें धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स सप्लीमेंट्स, जो कि पेशेंट हमें ये बोल देता है कि एक बार डॉक्टर्स को पीठ के पीछे कि ऐसे पत्ता लिख दिया, इसकी क्या जरूरत है। बट आफ्टर 40 इन 50s यू नीड दैट एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर योर होल बॉडी एंड फॉर द आईज आल्सो। ओके डॉक्टर साहब, सम मिसकंसेप्शंस जो लोगों को होता है आँखों के से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस अगर आप शेयर कर सके तो। मिसकंसेप्शंस एक तो यही हो गया ना, जैसे चश्मा उतर जाता है, लोग क्या करते हैं, बच्चों को जब मतलब ले जाते हैं बाबों के पास, बाबे क्या करते हैं आजकल, ये बहुत ट्रेंडिंग में चलता है कि दवाई डाली चश्मा तोड़ दिया, कि अब तेरे को चश्मे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो पहले जब मैं छोटा था तो मेरी दादी, हम जब जाते थे कहीं गाँव में, तो वो एक सुरमा सा बना के देते थे, जहाँ पे मेरी दादी प्याज के अंदर सिलाई लगा के उस प्याज का पानी आंखों में डालना, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। छोटे बच्चों में कज्जर डाल देते हैं, नहीं करना चाहिए। ये सब मिसकंसेप्शंस हैं। और जैसे जो ग्लूकोमा का जो देसी इलाज ढूंढते हैं, वो मिसकंसेप्शन है। क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट आती थी, तो शी वॉज वेरी रेगुलर विद मी। 2 महीने नहीं आई, 2 महीने बाद आई तो प्रेशर जो था वो मतलब 30% बढ़ा हुआ था जितना चाहिए उससे। तो मैंने इसको पूछा, तो आप फॉलोअप क्यों नहीं कर रहे थे? तो शी सेड कि मैं ना एक कोई देसी इलाज ले रही हूँ। तो मैंने इसे एक क्वेश्चन पूछा, मैं क्या तुम मेरे पास आते हो, मैं आपका प्रेशर चेक करता हूँ हर बार आँख का। चाहिए। उस बंदे ने किया, कहते नहीं किया। तो मैं क्या उसको कैसे पता आपका प्रेशर कितना है, वो क्या डोज दे रहा है, क्या कर रहा है वो? ठीक है ना। तो ये आंखों के लिए सिर्फ पूरी बॉडी के लिए है। वो तो बेसिकली हवाई फायरिंग कर रहा है एग्जैक्टली। वो बेसिकली क्या है, हमारे अंदर एक मेंटालिटी इंडियंस में कि देसी इलाज बहुत अच्छा है, जहाँ हम डरते हैं ऑपरेशन से तो हम उस तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। एक मिसकंसेप्शन और है कि सफ़ेद मोतिया दवाई से ख़त्म हो सकता है। ऐसी कोई दवाई दुनिया में नहीं बनी जो सफ़ेद मोतिया ख़त्म कर दे, क्योंकि बाल काले करने वाली जब दवाई नहीं बनी, ठीक है, तो लेंस को कैसे साफ क्लियर कर दोगे? बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये चीज़ है। बाकी जो देसी मेडिकेशन की बात मैं कर रहा हूँ ना, उसमें पूरी बॉडी की बात कर रहा हूँ ज़्यादातर। होता क्या है कि लोग गाँव में जैसे जिसको हम अंग्रेजी में क्वैक्स बोलते हैं, तो बेसिकली दे आर ट्रीटिंग विद ऑल दिस स्टेरॉइड्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो उसमें सारी बॉडी तो खराब हो ही रही है, और स्टेरॉइड्स जो हैं वो कैटरेक्ट करते हैं, वो ग्लूकोमा भी करते हैं। तो जैसे गाँव के पेशेंट मेरे पास आएंगे तो 40 साल पे कैटरेक्ट है जो 60 पे होना था। क्यों? क्योंकि देसी दवाइयाँ खा रहे हैं। तो सब ये इस ऑल मिसकंसेप्शन, ठीक है ना। और मतलब और मिसकंसेप्शंस में अगर बात करूं तो मतलब कई बार बहुत वियर्ड भी होती हैं। लोग बोलते हैं, जैसे एक मेरे पास पेशेंट आया था, मतलब मैं किसी की स्पिरिचुअलिटी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, बट मैंने उसको ये बोला था कि यार कि मैम यू हैव कैटरेक्ट, ठीक है, अभी शुरू हुआ है, देयर इज नो नीड ऑफ ऑपरेशन राइट नाउ, बट इन कमिंग टाइम में भी 6 months 1 year यू विल नीड ऑपरेशन। ठीक है। शी सेड कि मेरे को कैटरेक्ट नहीं हो सकता। मैंने उसको बोला क्यों नहीं हो सकता? शी सेड कि मेरा भगवान में बहुत विश्वास है। ओके। तो फिर ऐसे पेशेंट साथ आप क्या लॉजिक करोगे? ठीक है ना। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा साइंस के करीब रहना चाहिए।
बिल्कुल। ठीक है ना, विश्वास अलग चीज़ है। विश्वास तो हम भी करते हैं। जब मैं स्क्रब होता हूँ तो मैं भगवान का नाम लेके ही ऑपरेशन थिएटर में जाता हूँ। जब मैं ऑपरेशन करता भी हूँ तो मेरे पास गुरबानी कीर्तन मेरे साथ चलता है, मैं फ़ोन पे या स्पीकर पे लगा के करता हूँ, वो अलग चीज़ है। ओके। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप आंखें बंद कर लो, सामने आती हुई जितने चीज़ भी को। हमारे स्पिरिचुअल गुरुज हुए हैं या जो भी हुए हैं, उनको भी जो शरीर की दिक्कत है वो तो आनी ही आनी है। आनी है, बिल्कुल। ठीक है ना, तो इन चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। आजकल खास करके बहुत कम हो गया है, बट हाँ, एक और थोड़ा फनी भी है। एक पेशेंट था तो वो मेरे पास आया फ्राइडे, ओके। प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ था, ग्लूकोमा का पेशेंट था। हम्म। तो मैंने उसको बोला कि दवाई नहीं डाली रात? हम्म। तो उसने बोला नहीं डाली। मैं क्यों? वो कहते कि वीरवार के दिन हम दवाई नहीं डालते आंखों में। ओके। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ना, तो मेरे पास वो बाबे भी, मैं उन बाबों को भी जानता हूँ, कुछ मेरे पास आते हैं जो अपनी पॉकेट में दवाई रखते हैं। अच्छा। ठीक है ना, तो दुनिया को अब क्या बोल रहे हो और आप क्या खुद क्या कर रहे हो? बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीज़ तो है। तो रियलिटी से दूर नहीं जाना चाहिए, रैशनैलिटी के पास रहना चाहिए। एक डॉक्टर जो है, मैं 2008 में एडमिशन बैच था मेरा MBBS का। ओके। तो मैं 2020 के बाद अपने आप को इस लायक बना पाया कि मैं प्रैक्टिस कर सकूं। ओके। 12 साल तो ये हो गए। ठीक है। अभी भी मैं अगर बोलूं कि मैं सारी आई की सर्जरी कर ले तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक अभी है। नहीं, मेरी लर्निंग चल रही है। बिल्कुल। तो एक डॉक्टर को बनने में 12 से 15 साल लगते हैं। ठीक है ना, तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो आप। बिल्कुल। जो एक बंदा उठ के बैठ गया है वो हमें मैच नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ठीक है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो पुरानी चलती आ रही हैं, जो उसमें सप्लीमेंटेशन है, उसमें कुछ प्रिवेंशंस हैं, वो अच्छी बात है। ठीक है। मतलब प्रिवेंशन को आप ट्रीटमेंट के साथ कंफ्यूज करोगे तो आपका नुकसान होगा। नुकसान है, बिल्कुल। जी। डॉक्टर साहब, एक हम बैठे बैठे ना, कई बार ऐसा हमने देखा है कि जैसे हम आँख खोल के ऐसे कुछ देख रहे हैं तो ना, छोटी छोटी सी वो कीड़ियाँ वो सी टाइप विट्रस की का ना। शेडो है। आपके आँख के रेटिना के आगे एक जेली होती है। ओके। जैसे माँ के पेट के अराउंड एमनियोटिक फ्लूइड होता है, हाँ, वो शॉक एब्जॉर्बर है। बिल्कुल। तो वो जो जेली है वो बेसिकली थोड़ा एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है और वो क्लियर होती है। ओके। वो इतनी डेंस होती है कि उसकी जो शेडोज बनती है वाइट वाइट, हाँ। वाइट शेडोज आर नॉर्मल। बट अगर आपके पास ब्लैक आ रहा है ना, आपको ब्लैक फ्लोटर्स आ रहे हैं या फ्लैशेस आ रही हैं, तो वो आप यू शुड गो टू डॉक्टर एंड गेट इट चेक्ड। दैट कैन बी रिलेटेड टू सम डिजीज। ओके। वाइट वाला कुछ नहीं है वो। ठीक है। एक अपने यहाँ पे जैसा आपने बताया कि मिसकंसेप्शंस और वो सब चीज़ों के रिलेटेड, एक आंखों का फड़कने को बड़ा एक बहुत ही सीरियस नोट पे लोग लेते हैं कि लेफ्ट आंख फड़क रही है तो बिल्कुल है ना, ये अच्छा लक है, या फिर कुछ भी, मतलब लेडीज में लेफ्ट अच्छा होता है, जेंट्स में राइट अच्छा होता है। तो पहले तो आंख फड़कती क्यों है, और दूसरा कि इसका जो भी ये लक वगैरह वाला जो फैक्टर बोलते हैं उसका क्या है, मतलब कि कुछ है रियलिटी या जस्ट? जैसे हम अगर हंस रहे हैं तो हमारे मसल मूव करते हैं, रो रहे हैं तो अलग मसल मूव करते हैं। देयर आर ऑलमोस्ट मोर देन 32 मसल्स इन द फेस। ठीक है। जो काम करते हैं अपना। तो बेसिकली ये जो मसल होते हैं यहाँ पे वो फ्लिकर करते हैं। वो जो आप उसकी नर्व सप्लाई, जैसे बल्ब की अगर इलेक्ट्रिसिटी पूरी नहीं तो फ्लिक करता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही जो नर्व्स हैं यहाँ पे, तो उनकी बेसिकली प्रॉब्लम होती है। ओके। तो वो जो यहाँ से फड़कती है वो। ठीक है। तो उसके लिए न्यूरोलॉजिकली हम उनको सप्लीमेंट्स देते हैं जिसकी नर्व को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कई बार फड़कती है, कई बार स्पाज्म हो जाता है। पेशेंट क्या कैसी रहती है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो उसमें फिर हमें बोटॉक्स इंजेक्शंस आते हैं जो उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक तो है। ऐसी चीज़ें होती हैं, वो होता है। और उसमें ये चीज़ होती है कि अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो तो फ्लिकरिंग ज़्यादा होती है। अगर आप हार्ड ड्रिंक्स ज़्यादा ले रहे हो तो फ्लिकरिंग ज़्यादा होती है। अगर आपकी स्लीप पैटर्न ठीक नहीं तब भी ज़्यादा होगी। आप कॉफ़ी टी ज़्यादा ले रहे हो तब भी ज़्यादा होगी। ओके। इसका लक वगैरह से तो कुछ लेना देना नहीं है? नहीं, लक से अगर लेना देना होता तो फिर क्या ही बात थी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों को ना आंखों से रिलेटेड ही चीज़ है, कुछ लोगों को बहुत लेट तक रात को नींद नहीं आती। 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, कहते हैं नींद ही नहीं आती, आंख बंद करते नींद आती नहीं, फिर नींद ही नहीं आ रही। और एक बिल्कुल उल्टा, जैसे कि मान लो मैं अपना यूज केस लूंगा कि अपन 7-8 घंटे रोज सोते हैं, ठीक है, बड़े मतलब आराम से, उसके बाद भी हमेशा एक नींद सी जो है ना महसूस होती रहती है आंखों में, या आंखें थकी हुई सी रहती है। तो ये सीन क्या है कि मतलब किसी को नींद नहीं आ रही और किसी को इतनी ज्यादा आ रही है कि 9 घंटे सो भी लिया आप तब भी नींद आ रही जा रही है? नींद का एक्चुअली एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन दिमाग में। ठीक है। वो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है एक। ठीक है। तो जब सूरज छिप जाता है ना तो दिमाग को लगता है अब सोने का टाइम है। ठीक है। आंखों के थ्रू लाइट से पता लगेगा। बिल्कुल। तो पहले लोग सो जाते थे, दिया बंद कर देते थे,
लाइट बंद कर देते थे। अब हमारे हाथ में लाइट है, हम उसको चला रहे हैं, दिमाग को लग रहा है कि नहीं अभी नहीं सोना, ठीक अभी है, तो लाइट चल रही है। ठीक है। तो बेसिकली ये फ़ोन यूसेज है, इसलिए ये चीज़ है कि लेट नाइट तक लोग नहीं सो पा रहे हैं। और होता क्या है, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, एग्जाइटी में, थकावट में जाते हैं, एक विशियस साइकिल बन जाता है, फिर वो टूटता नहीं है। ओके, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हमें टाइम से सोने के लिए ये जरूरी है। और हम फ़ोन तो नहीं छोड़ रहे, बट हम मेलाटोनिन का सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, राइट। बेसिकली जो रूट कॉज है उसको ही आप, लाइफस्टाइल चेंजेस। हाँ, देखो मैं एक थोड़ी सी मतलब अलग तरह की बात होगी। जब इंसान बना था तो वो पत्थरों में रहता था, बिल्कुल, ठीक है ना। उसके बाद उसने बहुत कुछ किया। तो ये जो आप चीज़ें कर रहे हैं ना, वो आपकी लाइफ की जर्नी का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। कुछ हद तक तो है। मैं अपना बैंक ट्रांसफर कर देता हूँ फ़ोन से, मैं अपने बिल्स पे करता हूँ फ़ोन से, वो जरूरी है, सुविधा है वो, ठीक है ना, वो सुविधा है। जैसे कि लोग अफीम डॉक्टर यूज़ करते थे पेन किलर की तरह से, राइट। अगर उसको अब्यूज़ करोगे तो वो गलत है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो हमारी आंखें, हमारा शरीर, जैसे हम रह रहे हैं इस एरा में, इस चीज़ के लिए बना नहीं है। हो सकता है आगे जाके कोई ऐसी म्यूटेशन हम ले लें कि बिल्कुल हम अंदर के होके रह जाएं, जैसे कि कुछ मूवीज में, हॉलीवुड में दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मेलानिन बनना ही बंद हो जाता है अंदर अंदर रह के, बिल्कुल, विच इज़ नॉट हेल्दी। मतलब बॉडी को नेचर से दूर कर रहे हैं हम इन दीवारों से, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, हाँ, नींद का, आंखों में थकावट होने का कारण फिर ड्राइनेस पे आ जाता है। सूखी आंख जो है वो आपको तंग करेगी, ओके, ठीक है जी। उसके लिए आपको आंखों को आराम देना है, आंखों की मसाज कर सकते हैं, कूल पैड्स आते हैं वो लगाइए, ठीक है। और आंखें बंद करके थोड़ी देर लेटी, वो हम नहीं करते हैं। हम वॉशरूम में भी फ़ोन लेके जाते हैं, हाँ, ठीक है। हम जहाँ भी जाते हैं हम फ़ोन लेके, मैं खुद लेके जाता हूँ। आई एम ऑल्सो एडिक्ट टू फोन, ओके, और मैं खुद भी जो है आई ड्रॉप्स डालता हूँ, कभी कभी मेरे को डालनी पड़ती है, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन पे मैंने स्क्रीन ऑन टाइम का विजेट रखा हुआ है, ठीक है, वो रेड हो जाता है, बट मैं छोड़ता नहीं हूँ उसको। हाँ, वो एडिक्शन ऐसी है कि उसको कोई छोड़ नहीं पा रहा। जो जब नए नए फ़ोन आए थे, तो जो पेरेंट्स होते थे वो बोलते थे कि फ़ोन पे लगा रहता है फ़ोन, अब सबसे ज़्यादा पेरेंट्स लगते हैं फ़ोन पे। बिल्कुल सही, एडिक्शन ऐसी है। बिल्कुल सही कह रहे डॉक्टर साहब। तो ये तो हो गया कि जिसको नींद नहीं आती है। अब एक को नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, सो लिए 7-8 घंटे कहते हैं कि अप्रोप्रिएटली सोना चाहिए, सो चुके हैं, बट उसके बाद भी हमेशा नींद, मतलब स्लीपीनेस सी जो फील होती है। अगेन इट कम्स टू नेचर। विटामिन डी जो है वो अगर डेफिशिएंसी है, आपको लिथार्जी रहेगी, थकावट रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, ठीक है। विटामिन डी का ओनली एंड ओनली सोर्स है सनलाइट, जहाँ फिर आप गोलियाँ खा लो, सप्लीमेंट लो उसके। बड़ी हैरानी की बात है कि आपकी अगर विंडो खोलोगे तो आपको विटामिन डी फ्री में मिलेगा, मगर वो हम नहीं लेते हैं, हम गोली खाते हैं। 10 मिनट 15 मिनट अगर आप सनलाइट ले लोगे तो आपका डे का जो RDA है रिक्वायरमेंट, वो पूरी हो जाती है, बिल्कुल, विटामिन डी की, बिल्कुल। मगर हम जाते नहीं हैं, तो हम सप्लीमेंट लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारी जो डाइट है, जो लाइफस्टाइल है, उससे रिलेटेड है। मैं आपको एग्जांपल अपनी खुद की देता हूँ। मेरे ना फिंगर्स में पेन होना शुरू हो गया, ओके, 2 साल पहले, एंड आई वाज वेरी वरीड, क्योंकि मेरा तो सारा काम ही हाथों का है। आई एम आई सर्जन, आई एम माइक्रोवेस्कुलर सर्जन, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरे को तो बहुत बारीकी से काम करना होता है, तो आई वाज वेरी वरीड। तो मैंने बात की, तो मेरे एक फ्रेंड ही थे, तो उन्होंने उनको बोला कि आप 2 चीज़ें टेस्ट करवाओ, विटामिन डी एंड विटामिन B12। राइट। मेरा जो डी है वो अराउंड 25 चाहिए, मेरा 4.5 था, ठीक है। और जो विटामिन B12 है वो अराउंड 400-500 चाहिए, मेरा 98 था। तो विटामिन B12 जो है बेसिकली वो नर्व्स का सप्लीमेंट है, ओके। तो नर्व्स, अगर उसको खाना नहीं मिला तो नर्व्स पेन करने लग जाती हैं, चिल्लाती हैं। तो मेरी उंगलों पे आ गया था, तो आई यूज्ड टू डू सर्जरी, मेरी उंगलों में पेन होती थी, उंगलियां मेरी पेन करती थी। तो कहने का मतलब ये है कि हम सप्लीमेंट नहीं ले रहे, हमारी डाइट ऐसी है, हम मतलब जो चीज़ें कर रहे हैं, दिस इज, वी आर टेस्टिंग आवर बॉडी विद दिस। अर्लियर वी यूज्ड टू टेस्ट आवर बॉडी बाय फिजिकल एक्टिविटीज। लोग, मतलब जो एक वंडर है, जो कोलोसल जो स्टेडियम है, लोग वहाँ पे क्या क्या करते थे। हम बोलते हैं कि वो गलत करते थे, हम ठीक नहीं कर रहे। लोग बोलते हैं कि वो गलत था, आप फाइट करते थे, किसी की जान चली जाती थी, जहाँ घोड़सवारी क्या बेवकूफ़ी है, ऐसे बोलते हैं ना। बिल्कुल। तो जो हम अभी कर रहे हैं वो भी बेवकूफ़ी ही है, और शायद उससे बड़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ आज के टाइम में ना ट्रेंड चला हुआ है, बहुत सारे लोग जो है ना बाहर जाते टाइम जी लेंसेज का बड़ा
यूज़ हमने देखा है जी, जी, लोगों जी, करते जी, हुए। अब ये लेंसेज बहुत सस्ते में भी मिल रहे हैं और मतलब अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो दे कैन आल्सो बाय इट फॉर कॉस्टली प्राइजेस। जी। तो इसके यूजेस के बारे में आप हमें बताएं कि क्या ये सही है या किस तरीके पे, किस कंडीशन में सही है, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, उसके बाद ये खराब होता है। कॉन्टैक्ट्स वैसे लोग कॉस्मेटिकली भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो है वो चश्मा ना पहनने के लिए यूज़ करते हैं। हाँ जी। तो पर्सनली एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आई डोंट रेकमेंड कॉन्टैक्ट्स। ओके। उसका कारण ये है कि जो कॉर्निया है हमारा, और एक फैक्ट ये भी है कि आँख का जो कलर है वो कॉर्निया बाहर लेयर का नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है। अंदर जो आइरिस है उसका कलर होता है, ठीक तो है। इंडियंस का ज़्यादा ब्राउन है। तो बेसिकली उसका जो न्यूट्रिशन है ना वो टीयर फिल्म से आता है, जहाँ हवा से आता है। तो ठीक जब है। हम कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं ना तो उसका न्यूट्रिशन रुक जाता है। राइट। तो उसमें क्या होता है कि आपका कॉर्निया जो है, एक तो उसकी शेप चेंज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसा लेंस का शेप है कॉर्निया वैसी शेप लेता है। ओके। एक तो आपका नंबर फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। सेकेंडली वो ड्राई हो जाएगा, वो अनहेल्दी हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। ओके। ठीक है। तो इसलिए वंस इन अ वाइल, जैसे आप किसी वेडिंग पे जा रहे हो तो पहन लिया, वो अलग बात है, बट ऑन रूटीन बेसिस एज एन Avoid ही करना ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट चाहिए। आई डोंट रेकमेंड। Okay. एंड व्हेन आई मेट माय वाइफ and this was one thing I changed in her, that she was she used to wear a lot of contacts. ओके। तो मैंने उसके ये छुड़वा दिए। So मतलब everybody nowadays is doing, so she has that grudge on me also कि आपने आप मेरे को लेंस पहनने नहीं देते। बिल्कुल। But she is also she has severe dry eye. Okay. तो उसको मैंने ठीक किया, and I met my wife in my hospital only. अच्छा। She was my patient. ओके ओके ओके। वाह। सो ड्राइनेस जो है इस लेवल पे है, तो शी हैड वेरी स्वीयर ड्राइनेस क्योंकि वो कॉन्टैक्ट्स इतने पहनती थी। ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई विल से, आई व्हेन आई वाज इन डीएमसी लुधियाना, वी हैड अ पेशेंट देयर एंड ही यूज्ड टू वियर कॉन्टैक्ट्स। एंड उसने क्या किया, इन्फेक्शन बहुत होती है कॉन्टैक्ट्स। हाँ, मैं उसी। उसने क्या किया कि टैप वाटर से वॉश कर लिए, ठीक उससे है। डाल लिए। उस बंदे को इस लेवल की इन्फेक्शन हुई, उसके 2 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हुए। उसके बाद उसकी विजन जो बची वो बची। मतलब बिना बात के मुसीबत मोल लेने वाली चीज़ है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको कोई मतलब ठीक है, जैसा आपने बताया कोई फंक्शन में या कुछ वैसा है तो देन यू कैन वेयर, वो कभी समझ सकते हैं। 4 to 6 आवर्स पहनना चाहिए, उसके बाद कई लोग तो ऑफिस के लिए जैसे यूनिफॉर्म पहनना वैसे वो पहनने हैं। वो नहीं, कईयों को सूट कर जाता है, बट अवॉइड ही करना चाहिए। अच्छा, और बात है, पहले आज से 15 साल पहले यूज करते थे तो उसमें था कि आपकी आईज इतना ज्यादा स्क्रीन पे नहीं होती थी, तो ड्राइनेस कम होती थी। आजकल क्या क्या आप कॉन्टैक्ट्स भी पहन रहे हो और उससे आंख को अलग तरह से भी ड्राई कर रहे हो, तो वो जो चीज़ है ना वो इट्स नॉट अ गुड मैच। ओके। तो वंस इन अ वाइल इट्स ऑलराइट, बट पर्सनली क्योंकि मैंने ऐसे केस देख लिए हैं कॉन्टैक्ट से, तो मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ। राइट। एक डॉक्टर साहब, लसिक सर्जरी के बारे में आपने भी अभी बात की थी, तो ये आज के टाइम में ना बहुत ट्रेंड्स में चल रहा है, तो क्विकली एक बार हमें इसके बारे में बताएं कि क्या होता है और क्यों करवाते हैं लोग इसको। बेसिकली जो आंख की नज़र बनती है, जैसे जो आप बोलते हैं मेगापिक्सल्स या कुछ भी आंख का, वो बेसिकली 70% जो है वो कॉर्निया की शेप से है। ठीक है। और 30% जो है लेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है। सो कॉर्निया जो है मेजरली डिसाइड करता है आपकी विजन कैसी है। ओके। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि कॉर्निया की शेप को ऑल्टर कर देते हैं। जैसे माइनस का नंबर है तो उसको सेंटर से पतला कर देंगे, प्लस का नंबर है साइड से पतला कर देंगे। ठीक है। सो बेसिकली ये सब टेक्निक्स है ना, इसी चीज़ पे आधारित है कि हमने कॉर्निया के शेप को चेंज करना है। उसमें आप लेसिक करवा लो, उसमें आजकल स्माइल है, उसमें कुछ और कंटूरा विजन बोल देते हैं। ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो वो ये बुरी नहीं है, दे आर गुड, एंड दिस इज बेसिकली गुड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके। बट उसमें स्क्रीनिंग बड़ी ज़रूरी है। हर पेशेंट का लेसिक नहीं हो सकता। ठीक है। जिसका हो सकता है, जिसका सेफ है, उसका करो, तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती। बट हाँ, लेसिक लीड्स टू सम ड्राइनेस फॉर इमीडिएट 1 ईयर। ओके। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ के कुछ ना कुछ होता ही है। बट मैंने जो पेशेंट्स देखे हैं, दे आर हैप्पी पेशेंट्स, 99% आर हैप्पी पेशेंट्स। ठीक है। एंड यू कैन गो फॉर इट इफ यू वांट टू। ओके। हमारे एक एक्स एम्प्लॉय थे, कुछ टाइम पहले ऑफिस आए हमारे, मतलब ऐसे मिलने के लिए, तो उनको चश्मा लगा हुआ था पहले। अब उन्होंने चश्मा नहीं पहना था, तो अब हम पहले हमेशा जब भी उनको देखा तो चश्मे में देखा था, तो मैंने जस्ट पूछ लिया कि मैम आपने आई ग्लास, सन ग्लास, जो भी क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्स नहीं पहने हैं? तो कहते कि सर मैंने इसका ऑपरेशन करवा लिया, तो अब वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या ये ऐसा मतलब रिकमेंडेड होता है, ये सही है? क्या एज थी उनकी?
आई थिंक 26-27 कह रहा हूँ. हाँ, रेकमेंडेड है, आप करवा सकते हैं. ओके. आजकल तो चश्मा हर जैसे जिनका लेसिक नहीं हो सकता, उनमें हम ICL सर्जरीज करते हैं. वो एक पेपर थिन लेंस होता है जो आपके नेचुरल लेंस के आगे फिट कर देते हैं. ठीक है. तो जिनका लेसिक नहीं हो सकता उनका हम ICL कर देते हैं. जो 50 साल का बंदा हमारे पास आता है कि हमने चश्मा नहीं लगाना, उसको तो दो नज़र के चश्मे हो गए ना, एक तो दूर का लगा, उसका पास का भी लग गया. बिल्कुल. तो उसमें हम उसका जो उसका नेचुरल लेंस है ना, उसको हम रिमूव करके उसकी जगह पे आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि हमें फार एंड नियर एंड इवन इंटरमीडिएट विजन वाले लेंसेज आते हैं. ओके. तो जैसे जो हमने वो कैटरेक्ट होने पे लेंस डालना था, वो टाइम से पहले डाल देते हैं उसकी आंख में, क्योंकि उसको दूर की, नज़दीक की और बीच की विजन मिल जाती है. तो उसका ऑपरेट करके हम उसका भी चश्मा उतार देते हैं. वो चीज़ें हो रही हैं. ठीक है. आजकल डॉक्टर साहब एक ना ट्रेंड चल रहा है AI का. हर जगह पे AI हो रही है. तो क्या हमारे इस चीज़ में आँखों वाला जो आपका प्रोफेशन है, वहाँ भी किसी तरीके से AI का यूज़ हो रहा है किसी भी मतलब इलाज में या जल्दी किसी चीज़ को पकड़ने में? AI का तो नहीं, बट हाँ हमारा देखो 2 ब्रांचेस साइंस में ऐसी हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड रेडियोलॉजी. इट्स ऑल अबाउट मशीन्स. ओके. जैसे अपने लेसिक की बात की, तो एक अगर इसको हम बोल देंगे कि ये रोबोटिक है तो उसमें कुछ गलत नहीं है. ठीक है. क्योंकि मशीन बहुत कुछ डिसाइड करती है, और मशीन ही अपने हिसाब से लेज़र जो है कितनी हिट करनी है हम सेट करके देते हैं, वो खुद करती है. ठीक है. AI तो अभी नहीं बोल सकते, बट हाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है हमारे डायग्नोसिस बनने से ऑपरेशन तक. ठीक है. बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. ठीक है. तो जैसा आपने टेक्नोलॉजी के यूज़ के बारे में बताया, तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको देख के आपको ऐसा लगता हो कि जैसे होता है ना कि बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि यार ये भी हो सकता था, ये कभी सोचा नहीं था लेकिन अभी हो गया, कुछ उस तरीके की चीज़? हाँ, जब जैसे लाइक जो मेरे मेंटर हैं, जहाँ जिसको मैं बोल सकता हूँ मेरे गॉड फादर हैं ऑप्थेल्मोलॉजी में, डॉक्टर बलबीर सिंह पौरा. ही इज़ फ्रॉम अकाल आई हॉस्पिटल जलंधर. ओके. तो जब ही हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 40 ईयर्स, तो वो मेरे को बताते थे कि जब मैं ऑपरेशन करता था, शुरू में जब मैंने शुरू किया, तो पेशेंट के घर जाके उसके कॉर्निया को एक 50% कट देके उसका लेंस बाहर ऐसे निकाल के उसको बंद कर देते थे, और जो नज़र बन गई. ठीक है. अच्छा. मतलब चीरा देके वो स्यूचरिंग भी नहीं करते थे, वो नेचुरल जुड़ जाती थी 5-7 दिन में. अच्छा. जो नज़र बन गई, क्योंकि सफ़ेद मोतिया था, पत्थर जैसा वो निकल गया, जो उसकी नज़र बढ़ गई उसकी उतनी नज़र बन जाती थी. जैसे आपने देखा हो पुरानी मूवीज में 10-10 नंबर के मोटे मोटे चश्मे लगाते हैं, बाबू राव हेरा फेरी से लगाता है. ठीक है. तो क्या होता था, लेंस तब डालते नहीं थे, तो तब क्या करते थे, लेंस की जो पावर थी उसको चश्मे से कवर करते थे. ठीक है. तो इसमें एक मैं और नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर दलजीत सिंह फ्रॉम अमृतसर. ओके. ही इज़ पायनियर इन इंडिया, जो इंडिया में लेंस आँख में डालने वाले वन ऑफ द फर्स्ट सर्जन्स एंड वन ऑफ द मैं लूँगा लेजेंडरी सर्जन, पद्मश्री डॉक्टर दलजीत सिंह. ओके. ठीक है. तो ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में उस टाइम पे. ठीक है. उसके बाद जैसे जिस लेवल की हम इमेजिंग आजकल कर पा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है जो कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया था. जैसे अब रिसेंटली मैंने 3D सर्जरी भी की है. तो नॉर्मली हम माइक्रोस्कोप से नीचे देख के करते हैं, तो अभी जो है सामने बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और मैं 3D ग्लासेस लगा के तो उस पर ऑपरेट करता हूँ. वो किया है मैंने. तो वो उसमें क्या है कि आपको एक बहुत बड़ी आंख 3D में दिखती है. यानी कि टेक्नोलॉजी से हमें बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ने साइंस को बहुत चेंज कर दिया. जैसे 80s में सिर्फ एक्सरे होता था, तो अभी आप देखो, आप ब्लड फ्लो डाई डाल के कहाँ नहीं है वहां तक जाते हैं. ठीक है ना. तो ये बहुत बड़ी बात है. हम ऑप्टिक नर्व का, जैसे पंजाबी में बोले तो करंट चेक कर लेते हैं, ऐसे भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं. ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चेंजेस हैं. कहाँ मतलब कितनी छोटी आंख है, और हमारे पास अगर मैं बताऊँ, जैसे हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं तो हमारे पास 3 से 4 मिलीमीटर का ही एरिया होता है काम करने का. ऊपर आओगे तो आप ऊपर टच कर दोगे, नीचे जाओगे नीचे टच कर दोगे. तो 4 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर प्रिसीजन कितना इंपॉर्टेंट. वो मैं बोलूँ अगर कि कोई सर्जन बोले कि मैं बहुत बड़ा हूँ इसमें, वो ऐसा नहीं है. उसमें जो टेक्नोलॉजी, जो मैग्नीफिकेशन आपको दे रहे हैं, जो मशीन्स ऐसी दे रही हैं, तो वो तो AI तो अभी मैं नहीं बोल सकता. एंड मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगता कि AI कैन टेक ओवर द ह्यूमन ब्रेन. दिस इज ऑल्सो डिबेटेबल थिंग. बट कहाँ क्या कैसे यूज़ करना है और इम्प्रोवाइज कैसे करना है, क्योंकि अगर मैं 10 सर्जरीज कर रहा हूँ तो 10 की 10 एक जैसी नहीं हो सकती. बिल्कुल. सब में कुछ ना कुछ अलग ट्रीटमेंट है. आपका प्रोटोकॉल बना हुआ है. जब आप आँख को ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो आपका हर केस इज अ डिफरेंट केस. उसको कैसे उसको इम्प्रोवाइज करना है, कैसे उसको टैकल करना है, वो एक अलग गेम है.
ठीक अभी है। AI is too early to say, but yes, technology has been very big factor in ophthalmology in Got it. last say 20-30 years. जैसे लेसिक बहुत बड़ी बात है, गॉट इट। चश्मा उतर जाता है, बहुत बड़ी बात है। जैसे आंखों में कई ना लोगों की चीज़ें चली जाती हैं, जी। तो कुछ आपने कुछ वियर्ड अभी तक देखा हो अपने एक्सपीरियंस में कि कुछ अजीब सी चीज़ निकल आई किसी के आंख में से जो बड़ी सरप्राइजिंग या बहुत अलग हो, कुछ वैसा? मैंने एक पूरी की पूरी छोटी मधुमक्खी भी निकाली आंख में से, मतलब लिड के नीचे थी। तो उसके अलावा जैसे बाइक चला रहे हैं तो उसमें कुछ बजा और निकल गया, उसके छोटे छोटे बाल होते हैं वो फंस जाते हैं, सीटे बोलते हैं उसको। अच्छा। वो भी निकाले हैं। फिर आई डिड माई रेजिडेंसी फ्रॉम DMC लुधियाना। तो वहाँ पर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो वहाँ पर अंदर से आँख से लोहे के इतने इतने बड़े पीस निकालते रहे हैं। तो ये चीज़ें तो होती हैं फैक्ट्रीज में काम करते हुए लोगों की आंखों में। प्रोटेक्टिव गियर नहीं यूज़ करते। बिल्कुल। प्रोटेक्टिव गियर यूज़ करने के तो आँख बच जाती है, ठीक है। मगर वो यूज़ नहीं करते। तो डॉक्टर साहब, हमने आँखों के बारे में जो बेसिक सवाल जवाब होते हैं, जी। जो क्वेश्चंस थे मन में हमने पूछे आपसे और आपने बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिए। अब हम बात करते हैं आपकी बुक के बारे में। जी। तो सबसे पहले तो एज अ डॉक्टर वैसे ही मुझे लगता है कि बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है किसी का भी, जी। तो उस सब के बीच में आपको एक बुक लिखने का पहले तो टाइम कैसे मिलता है, और दूसरी बात कि ये आपका कुछ नया शौक आया है या फिर ये आप पहले से फॉलो कर रहे हैं राइटिंग को? इसके बारे में कुछ बताएं आप। देखिए, मेरी ज़िंदगी में ना एक शब्द का बहुत बड़ा उसको मैं लेके चलता हूँ, उसका वो है बर्ड्स आई व्यू। ओके। ठीक है। जैसे अगर आप ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ, बिल्कुल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, नहीं। स्लो लगता। हाँ, बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा होता है। एग्जैक्टली। हाँ। तो वो बर्ड्स आई व्यू है। ठीक है। तो कहने को बहुत तेज है वो, बट बिल्कुल। बहुत बड़े लेवल पे देखोगे उसको तो वो इतना तेज नहीं है। बिल्कुल। जैसे आपने पूछा कि टाइम नहीं मिलता, ਸੋ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਲਿਖ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਰਾਈਟ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ लिखना। ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤਲਾ ਦੇ ਤਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਹਲਚਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਉਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੌੜ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਰੈਟ ਰੇਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਟ ਸਕੂਨ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਸਫਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਰੂਹ ਦਾ ਸਫਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 2000 ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਿਖਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, 20 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਓਲਡ ਆਰ ਯੂ? ਆਈ ਐਮ 34। ਓਕੇ। ਤੋ ਬਟ ਹਾਂ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ MBBS ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਆਈ ਸਟਾਰਟਿਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਮ ਸੈਂਸ। ਓਕੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਦ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੈਪਟ ਮੀ ਸੇਨ। ਓਕੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ 'ਤੇ। ਨੋਟ ਟੂ ਬੈਡ, ਨੋਟ ਟੂ ਸੈਡ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਓਕੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਪਿੰਡੇ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 'ਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੋ ਬਿਗ, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੋ ਸਮਾਲ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ।
ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦੂਗੀ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ 2013 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਓਵਰਪਾਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਫੇਜ਼ਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਸਟੇਜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। सो इट्स काइंड ऑफ मेडिटेशन फॉर यू, लाइक लिखना अपने आप में एक मेडिटेशन का फॉर्म हो गया। ਬਿਲਕੁਲ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਫਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਉਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ओके जी डॉक्टर साहब, आजकल का जो टाइम है वो डिजिटल फर्स्ट हो गया है ना। हर चीज़ हमें मतलब पढ़ना भी है, कुछ तो फ़ोन पे ही पढ़ रहे हैं या आईपैड पे या लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं। तो इस टाइम में बुक राइटिंग, मतलब आप इसके बारे में आपका क्या सोचना है कि हाउ इज़ इट गोइंग टू सर्व यू और मे बी सोसाइटी? ਬੁੱਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਬੁੱਕ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਈਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਖੜੇ ਵੀ ਹੌਂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਠਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਮਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ which you don't know, which you don't need. Yes. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਮੱਛੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕੁਛ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੂ ਮਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਕਲੋਗਰਿਦਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। मतलब आपका सफ़र चले जा रहा है और आपको कहीं जाना ही नहीं है, कहीं जाना नहीं। तो इसके लिए ना गीता में जैसे एक चीज़ कही जाती है कि किसी भी चीज़ की जो अति है, अति सर्वत्र वर्जते। जी। किसी भी चीज़ की जो ज़्यादा है वो खराब होती है, एक लेवल तक वो बहुत बढ़िया है। जैसे हम चाय में चीनी डालते हैं तो जो एक डिसेंट लेवल पे चीनी है दैट मेक्स इट गुड, बट अगर उसमें चीनी ही भर दो तो आप तो वो पीने लायक ही नहीं रहता। बिल्कुल। सो बुक ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਵੈਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣਾ ਮੇਰੀ ਕਾਹਲ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕਾਹਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਰਾਈਟ ਅ ਬੁੱਕ। ਓਕੇ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ 2 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਈਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਦੌੜ ਹੈ ਇੱਕ। ਓਕੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੰਬਰਸ ਗੇਮ। ਸੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਠਹਿਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ 8-8 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਬੁੱਕ ਲਿਖਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਗੰਡਾ, ਰਾਈਟ, ਇਸ ਬੁੱਕ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਟੈਲ ਅਸ ਸਮਥਿੰਗ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਗੰਡਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ 2017-18 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਫਿਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ओके 21-22 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 2-3 ਸਾਲ, 2014 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ। ओके ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤਰਸੇਮ ਭਾਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਕੈਚ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ, अच्छा ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੌਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਂਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ सो बुक इज स्टोरीज और पोएट्री और व्हाट? ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ओके ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ठीक है ਬਟ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਰੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਵਰੋਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹੈ, ओके ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ओके ਲਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। टोटल कितनी पोएट्री है बुक च? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ 66, ओके 176 पेजां की किताब है। एंड कोई टारगेटेड ऑडियंस आपकी इसके लिए कि किसके लिए ये बेस्ट है फॉर लाइक? ਨਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਆਡੀਅנס ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ओके ओके भाजी एक वर्ड सुनिया आत्मज जी, व्हाट इट इज अबाउट? ਆਤਮਜ ਮੇਰਾ ਤਖੱਲਸ ਹੈ, ओके ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਤਮਜ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਿਤੋਜ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਤਮਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ, ओके ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ठीक है ਅਤੇ ਆਤਮਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਲੈਫਟ ਅਸ ਇਨ 2021। ओके ਸੋ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਹੈ, ठीक है ਅਤੇ ਆਤਮਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਕਿ ਅਮਿਤੋਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ठीक है ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਈਟ। ठीक है ਆਤਮਜ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਮਿਤੋਜ ਦੇ ਇੰਨੀ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਤਮਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੋਡਫਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 4 ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਐਮ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਰੀਡਰ ਆਲਸੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। राइट ਸੋ ਆਤਮਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਤਮਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਜ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਤਮਜ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ। ओके ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। आत्मज ਆਤਮਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲਹੂ ਵੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ। ओके ओके ਸੋ ਆਤਮਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ दिस इज आत्मज। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आप ज़्यादा पढ़ते तो नहीं है जी, बट स्टिल जी, अब एज अ राइटर आपके कुछ फेवरेट बुक्स भी होंगी जी। तो एनी बुक यू मे बी वांट टू रेकमेंड टू पीपल? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਆ,
ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕ ਹੈ। ਮੇਕ ਸੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸੈਂਸ, ਬਟ ਉਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਅਸਾਂ ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਮਰਨਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਸੀਗੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਹੀਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀਰ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਰეკਮੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਮਾਈਟ ਬੀ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਹੈਗੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੁਰੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਆਲਮਾਈਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਇਟ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਮੈਨੀ ਮਾਸਟਰਸ ਮੈਨੀ ਲਾਈਵਸ। ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਵੇਜ਼, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਹੈ ਮਾਇਆਮੀ 'ਚ, ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਓਲਡ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫਸ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਇਹ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੈਂਟਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਅ ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਅ PhD ਔਨ ਦਿਸ ਐਰਾ ਆਫ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਦ ਲਾਸਟ ਕੁਈਨ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਈਲ। ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੈਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਲੋ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਲੋ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਬੌਧਿਕ ਹੈ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਹੋਗਾ, ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਬਿਗਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਡਨੈਸ ਹੈ। ਯਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਉਣਾ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਔਨ। ਰੇਸ਼ਮੀ ਗੰਢਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਰੇਸ਼ਮੀ ਗੰਢਾ ਔਨਲਾਈਨ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮੀ ਗੰਢਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਭਵਨ 16 ਸੈਕਟਰ, ਉੱਥੇ ਬੂਟਾ ਬੁੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਮਾਰਕ ਹੈਗਾ ਆ
ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਦਾ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਈਨਡ ਕਾਪੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪਾਰਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ओके, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो एंड लिटरली आई इंजॉयड अ लॉट। मतलब डॉक्टरी भी हो गई, ਹੈਲਥ के बारे भी जान लिया ਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਯੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਆਤਮਜ_ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਲਿੰਕ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਓਕੇ, ਤੋ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵਾਹ ਵਾਈ ਦਿਲ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਹ ਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਗਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। that is just on the surface, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲਾਈਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਸਟ ਬੁੱਕ, ਆਈ ਐਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਬੁੱਕ ਆਲਸੋ ਓਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ I will keep on writing, and everybody, this is my message as a poet, everybody should have some passion. Okay, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ no problem। ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਕੰਦਰ, ਓਕੇ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ PhD ਦਾ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਗੁਲਪਨਾਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਨ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਜੇ ਪਾਗਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ 10-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪੋਇਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ, ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਨੀ ਮਾਸਟਰਸ ਮੈਨੀ ਲਾਈਫਸ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਮ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 100 'ਚ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 30-30 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਫਸਟ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਓਕੇ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਐਂਡ ਦ ਵੇ ਯੂ ਆਸਕ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ say what I wanted to, ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। I am really glad you said that। ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, any suggestions which I think you have already given to the audience। ਜੀ। So thank you again, and we will meet soon sometime। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। Thank you। Okay ਜੀ।